Okay. So once again, welcome to the Computer Network lecture series, and so today we are going to start with the second chapter, that is physical layer. Okay, and according to the physical layer, which has been the content which has been given by the Mumbai University is quite different. Okay, as you can see, we have only introduction to communication electromagnetic spectrum. Okay, so here let me show you. This is the frequency spectrum, or we can say spectrum band, where all the types of frequencies are there. Okay, very low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, सुपर हाई फ्रिक्वेंसी, ये आपका उसके बाद में एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट एंड ऑल दैट। तो ये पूरा जो बैंड का जो पूरा कॉम्बिनेशन है जो एक साथ में जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट द स्पेक्ट्रम। ओके, तो उसके उसके बारे में आपको खाली स्पेक्ट्रम के बारे में बताना है। ओके, इसके बेस पे कोई क्वेश्चन रहता नहीं वैसे। और जो सेकंड जो टॉपिक है जो कि इन्होंने दिया है वो है गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, and in this particular guided transmission media we have only twisted pair cable, coaxial and fiber optic. Okay, so only three types of cables are there. Okay, they have not covered the unguided transmission media. Okay, in last year of syllabus, देखो मैं आपको 2021 के अंदर बताता हूँ सिलेबस अगर होगा इधर तो, क्यों नहीं सिलेबस बाहर होगा। अभी देख लेते हैं। ये 18 वाला है, तो इसमें देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का। तो कंप्यूटर नेटवर्क के सामने आ गए हैं। देखो ये है आपका सेकंड वाला जिसको इन्होंने नाम दिया था फिजिकल लेयर करके। और फिजिकल लेयर के अंदर फिर इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, डिजिटल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सब पूरा मतलब अननेसेसरी था, इन्होंने इसको सबको निकाल दिया है। दे हैव जस्ट पुट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और बाकी सब जो है ना वो तो सब बेसिक्स है, सॉल्व कर लो। और you can see in this second section we were having topic like guidance. What is the purpose to show this particular syllabus to you people is that you must understand there is a, there is a broad category that is guided transmission media, not a guided transmission media. Basically it was like a ट्रांसमिशन मीडिया। ये भी आपका सिलेबस एक्चुअली मतलब पिछली बार का है। इसके पहले वाले सिलेबस में और उन्होंने और बहुत सारा कवर किया था, लाइक the broad category was transmission media, and after that it was divided into two sections. One was guided transmission media, and the second was unguided transmission media. यहाँ पर हाँ देखो यहाँ पर हम लोग ने मेंशन किया एक्चुअली। So twisted pair cable, coaxial cable, and fiber optic cable. These three comes under the guided transmission media. They have not stated properly. And then unguided media. See what they have written. Unguided media, that is wireless transmission. In this radio waves, microwaves, Bluetooth, infrared, so all these types of communication, the satellite communication. Okay, so all these types of communication comes under this particular one. Okay, so basically it was guided transmission media and unguided transmission media. Let me explain you first what is guided and unguided transmission media, then only you will be able to understand the guided transmission media. Because if you understand the broad term and the the broad concept about this transmission media, then you can easily understand the remaining topic. Because we are going to learn about the guided transmission media only. Okay, give me a second, I'll be connecting. Okay, हार्ड केबल जल्दी से बेंड नहीं होते हैं। ओके, तो ये आपको मुझे बताना था। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। यस, क्लोज ऑल द टैब्स। कहाँ थे? अच्छा पहले मैं देख लूँ, इज इट विजिबल फ्रॉम ऑल द वे?
So let us start formally now. Okay, so we have second chapter as a transmission media. Okay, and this particular transmission media, is divided into guided and unguided transmission media. So for understanding, I have mentioned some of the basic topics that we must understand. Okay, as far as your previous syllabus was concerned, this is the oldest branch of the electronic domain, this communication part. And you also know that the electronics branch is the mother, or you can just say the sister branch of the computer. Okay, so अब हाँ जो computer branch है that comes out of the electronics branch only. तो काफी गहरा नाता है. We can say this is the oldest branch of electronic domain. What that is communication. Okay, then telecommunication, computing at the communicating at the distance. So few people are staying at some distance and they are communicating. So we can say that is nothing but the telecommunication. So some small terms are mentioned over here, and the definition, the small explanation I have written over here just for your understanding. एंड एज वी हैव डिस्कस, नहीं आपके साथ में डिस्कस नहीं किया मैंने, ये उनके साथ में फाइनल वालों के साथ में. व्हाट इज सिग्नल. ओके, मैं यहाँ से अपने फ़ोन पे बात कर रहा हूँ. ठीक है, आई एम कॉलिंग, आई एम टॉकिंग एंड आई एम कम्युनिकेटिंग विद समवन एल्स. ओके, सो आई एम टेलिंग इन द फॉर्म ऑफ वॉइस. ठीक है, मेरी वॉइस निकल रही है, मेरी ऑडियो जा रही है. अभी जो ऑडियो जा रही है तो ये अंदर जाएंगी, और जाने के बाद में ऑडियो के फॉर्म में थोड़ी जाने वाली है. ओके, so that audio must be converted in the form of signal. Okay, so basically what is, acha, I'm sending some video, I'm sending some text to my friend, okay, or to my relative. Okay, so how it is being done? The text and the videos and the audios are going as it is? No. Okay, they they all are getting converted into the signals. Okay, so basically we can say, what is signal? The very basic question and the viva question is that what is signal. So signal is nothing but a physical representation of your data. Okay, and now what is your data? Your data may be text, your data may be audio, video, any type, any type of data. Okay, so just a small definition. What is signal? It's a physical representation of data. Okay, छोटे छोटे टर्म्स है, इसके लिए हम लोग उसको गो थ्रू कर रहे हैं, हालांकि ये सब है भी नहीं, लेकिन छोटा सा करना है. So users of the communication system can only exchange data through the transmission of the signal. Okay. Now how two entities can communicate? How these two entities can communicate? They can only communicate with the exchange of data through the transmission of signal. Okay. The exchange of data can be done only with the help of the transmission of signal. Okay. See, this is my Bluetooth mouse. Okay, and the receiver I have already connected to my laptop. Okay, so how these two things are communicating, how these two entities are communicating. Okay, I'm just clicking on the right part, that is on the, I'm clicking the right click कर रहा हूँ मैं. जैसे ही मैं right click करता हूँ तो that signal will goes to that particular receiver, and then that receiver will give that signal to the computer. तो बेसिकली दिस इज हैपनिंग ना. सो एक्सचेंज ऑफ सिग्नल्स, यहाँ से सिग्नल जा रहा है वहां पर, और वहां से सिग्नल मेरे पास में आ रहा है. ठीक है, सो दिस थिंग विल गो ऑन. तो हम लोगों ने दो की बात की, यहाँ पर खाली वन वे है, बिकॉज मैं यहाँ से इसको ऑपरेट कर रहा हूँ. ओके, तो आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम ओवर हियर, सो द सिग्नल्स आर गोइंग टू द कंप्यूटर. if two mobiles are communicating, then what I can say, they are exchanging the data through the transmission of signal. तो सिग्नल जा रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं. Okay, communication system is the means of conveying information from one place to another place, one and the same thing. Components of the communication क्या हो सकते हैं, तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, बट स्टिल मैंने मेंशन कर दिया था. इनपुट ट्रांसड्यूसर, अभी हम कुछ जाना नहीं ट्रांसड्यूसर क्या है. तो लाइक ट्रांसमिशन जो जो आपके ट्रांसमीटर करते हैं वो आपके रहेंगे. तो इनपुट इनपुट ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, देन कम्युनिकेशन चैनल आपका मीडियम, देन रिसीवर, देन आउटपुट ट्रांसड्यूसर. हर ट्रांसमीटर के पास में एक क्या कहेंगे इसको, ट्रांसड्यूसर होते हैं. ठीक है, जिसको हम लोग, अच्छा, इनपुट भी होते हैं, आउटपुट भी होते हैं, बिकॉज दे विल बी either taking the input or they will be giving the output. Okay, so I have two entities, these two entities are communicating, and these two entities are if these two entities are communicating, then I can say this particular entity must be having input transducer, it must be having transmitter. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, और इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, जहाँ से जो आएगा उसको रिसीव करेगा. ठीक है, तो बेसिकली इनके पास में सारे ये चीजें होती है, कंपोनेंट्स होते हैं.
So as we have mentioned that कि what are the components of the network, okay, so you said like एक कंप्यूटर होना चाहिए, केबल होना चाहिए, एक नेटवर्किंग डिवाइस होना चाहिए and all that, okay, so those are the components. So like for communication we can have these components. आगे क्या है, now coming to the main topic, that is main point that what we have to cover in today's session. इसके अलावा हमको आगे भी बढ़ना है बिकॉज ये ज़्यादा नहीं, 2 आवर्स लगेंगे, तो आज और कल में इसको हम लोग फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, बट जो आपका सेकेंड पार्ट है गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, इट विल टेक टाइम, कम से कम 2 आवर्स वो लेता है, ठीक है। तो कमिंग टू द फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, okay, so this is frequency spectrum. एक सेकंड, हाँ जरा। Okay, coming back to the topic. Okay, so this is our frequency spectrum. Okay, so basically let me tell you one thing, that spectrum is the natural resource of any government, or we can say any organization. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में गवर्नमेंट है, so we can say this is the natural resource. Okay, and this particular resource, now what these people are doing, like this service provider, ये सब लोग क्या करते हैं, थोड़ा आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। और आगे चल के आप लोग 7th सेमेस्टर में जब एमसीसी पढ़ने के लिए आएंगे, तो वहाँ पर भी आपको यही मैं स्पेक्ट्रम बताऊंगा, ये स्पेक्ट्रम, बट यहाँ थोड़ा सा हम लोग और आगे जाएंगे, ठीक है। बेसिकली जो स्पेक्ट्रम होता है, दैट इज नेचुरल रिसोर्स, ओके, वेयर ऑल द टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर सिचुएटेड, ओके, एज यू कैन सी, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम, अच्छा ये सारों को एक जगह जमा किए, एक जगह जमा नहीं किया बल्कि उनको डिवाइड किया गया और उनको प्रॉपर्ली नाम दिया गया, ठीक है। सो बेसिकली इट स्टार्ट फ्रॉम दी 300 हर्ट्ज से लेकर 300 टेरा हर्ट्ज तक ही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी all the types of frequencies are, they have been named as the different types of frequencies, starting from the VLF, that is very low frequency, यानी कि हम जिसको बोलेंगे the 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 band from frequency 300 hertz to the 30k hertz, this is called as very low frequency band, okay, like from 330 kilohertz से लेकर तो 3 मेगाहर्ट्ज तक का जो बैंड है, उसके अंदर लो फ्रिक्वेंसी और मीडियम फ्रिक्वेंसी दोनों आती है, दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड किया, तो लाइक दिस वे सारी की सारी फ्रिक्वेंसीज हैं। इसके बारे में डिटेल में आप लोग 7th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, इसका कुछ काम भी नहीं है आप लोग को, बट ऐसा नाम दिया तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू, दिस इज द फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम वेयर ऑल द all these frequency section, or we can say bands, are divided into number of frequencies, and those frequencies are having different range also, okay, which is starting from 300 hertz to the, and it goes up to 300 terahertz, okay, and those frequencies are very low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, super high frequency, extremely high frequency, then comes in infrared, and then visible light, then ultraviolet, and so on, okay। so इतना इतना हम लोग शो कर सकते हैं, okay। one more thing about these band and these frequencies is that all these frequencies are having different characteristics, all these frequencies are having different types of characteristics, so that they so that their work can be defined, like medium and high frequencies are having the power of penetration into the water, okay, they can penetrate into the water. So these medium and high frequencies are being used by the submarines who are in oceans, okay, so they use this particular frequency so that they can detect the object which is coming in between of them, okay। तो रास्ते में जो भी कोई, फॉर एग्जांपल कोई पहाड़ है, होता है ना, ओशियन के अंदर पहाड़ होता है, तो कहीं सबमरीन जाके टकरा ना जाए, ओके, सामने से तो देखते हैं लोग, लेकिन दैट इज नॉट क्वाइट विजिबल, so they make use of these type of frequencies, so these type of frequency, अच्छा, जो बात आपको मीडियम फ्रिक्वेंसी में, हाई फ्रिक्वेंसी में दिखेंगी, वो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी में नहीं रहेंगी, मे बी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी इज हैविंग सम अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके।
In the same way, extremely high frequency is having some another characteristic. Okay, so according to their characteristics, according to their property, they can be used at different places. ओके, सो अलग अलग जगह पे उसको यूज़ करते हैं. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने उसको एमसीसी के लेक्चर में, मतलब एमसीसी के स्लाइड में उसको पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, तो कौन सी कहाँ यूज़ होती है, उसके एप्लीकेशन क्या है, तो थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया. So right now, this is for your understanding that this is the frequency band, or we can say frequency spectrum, or we can say electromagnetic spectrum. Okay, in this the whole band is divided into the different range. Those are VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF, and EHF, infrared and visible light. Okay, and those ranges start from 300 hertz to the 300 terahertz. Okay, और आगे तक जाती है, but just for your understanding purpose, these has been shown. Okay, हाँ, यहाँ तक क्लियर है. इसमें हम लोगों को कोई मतलब समझने वाली तो कोई बात नहीं है, कोई मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. स्टिल anyone has any doubt regarding this frequency spectrum, electromagnetic spectrum? 38 students are there. Anyone can reply that yes sir, we are understanding, yes sir, we are not understanding, like that. Am I audible? आवाज आ रही है मेरी बराबर? चलो ठीक है. आई थिंक अदर्स आर स्टिल स्लीपिंग. होता है ना, मॉर्निंग के टाइम पे अपना लेक्चर ऑन कर दो, कहाँ सर कहाँ पूछने वाले हैं, ऑन करके रख दो, वापस सो जाओ, आधे घंटे बाद का अलार्म लगा दो, उठ के फिर अटेंडेंस दे दो. ऐसा कुछ होता रहेगा. हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं. फिर भी आई सी टू पीपल दैट कि कम से कम थोड़ा सा आप लोग सुन लिया करो, और कम से कम थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लिया करो जो भी लेक्चर, नॉट अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क इटसेल्फ, बट जो भी लेक्चर हो रहा है, सो एटलीस्ट गो थ्रू वंस. ओके, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर डेटा, इन्वेस्टिंग योर पावर, जो भी मोबाइल का जो बैटरी है वो, सो ऑल दीज थिंग यू आर इन्वेस्टिंग. सो आफ्टर इन्वेस्टिंग यू मस्ट गेट सम आउटपुट. ठीक है, so that our output must be in the form of knowledge. So my suggestion, okay, it's up to you, but okay. So coming to the frequency after, चलो ठीक है, ये तो कुछ काम करिए. Okay, now this is about no, we are going to cover this particular part only, that is guided transmission media. Okay, so first of all we have introduction of transmission media. What is transmission media? We are talking about from so far, we are talking about the transmission media, guided and all that. So we'll learn about that, what is transmission media, then afterward what are the different types of transmission media. अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा, बिकॉज मैंने इतनी बार बोला है, हर लेक्चर में बोला है, ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया. तो आई थिंक आप लोग को अब तक तो याद हो गया होगा. the different types of transmission media, one is the guided, second is unguided. Unguided is not covered in the syllabus right now. Okay, from this year guided transmission media is covered, and in this particular guided transmission media we have again three different types of cable, or three different types of transmission cable, we can say. So transmission media, we can say, one is the twisted pair cable. Again, that twisted pair cable, again that twisted pair cable is divided into two types. One is unshielded twisted pair cable, and the second one is shielded twisted pair cable. Okay, so UTP and STP, not a big difference between these two. One is having external shield, second is not having external shield. Second type of cable is coaxial cable, which you might have seen in your home. Okay, जो टीवी का केबल पहले आता था, जो पहले बिफोर आपके सेट टॉप बॉक्सेस के पहले जो पहले केबल आता था आपके घर में और टीवी में कनेक्ट होता था. अब तो काफ़ी सालों से सेट टॉप बॉक्सेस चल रहे हैं. आई हैव नॉट इवन सीन दैट पर्टिकुलर डिवाइस, बट पहले ऐसा केबल घर में आता था, वो केबल हमारे टीवी में जाता था, मतलब केबल का. तो वो जो केबल हुआ करता था, दैट केबल वाज कोएक्सियल केबल. ओके, तो उसके 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 बारे में हम लोग पढ़ेंगे. एंड आफ्टर दैट वी हैव लास्ट वन, दैट इज फाइबर ऑप्टिक केबल, which is very fast, as you know, because almost we all are using that
नो दिस टाइप ऑफ केबल एट आवर होम। जो हमारा जो राउटर्स है, जो हमारा कनेक्शन है वो गीगाबिट का है और उसके अंदर हमको फाइबर ऑप्टिक के केबल के थ्रू स्पीड मिलती है, मतलब इंटरनेट मिलता है। So we are going to cover up to this part, that is guided transmission media. Okay. Regarding this unguided transmission media, we will not cover. Just I will give the introduction about this unguided transmission media. Coming to the next one. Okay. So first of all, this is I have placed some of the introduction regarding this transmission media so that you can understand the basic of transmission medium. So transmission media, if you have seen that the transmission media are located at below the what we can say, हाँ बेटा बस। Okay, so when we talk about the transmission media, then your transmission media are located, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले। I got one new application from Microsoft which is whiteboard. Microsoft का whiteboard मुझे मिला है, तो मैं बोला चलो इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। So this is transmission media. Okay, so we have all these layers. Okay, all these layers are like 1 2 3 4 5 6 7. So all these 7 layers are there, and after that we have a transmission media. Okay, so we have this transmission media. मैंने इंटेंशनली इसको थोड़ा सा मोटा बनाया हूँ, थोड़ा थिक बनाया, so you can understand कि आपका ट्रांसमिशन मीडिया है। ठीक है, अभी जो ट्रांसमिशन मीडिया है आपका, that is nothing but the cable which is carrying your data. Transmission media. Okay, that transmission media may be number one, twisted pair cable. The twisted pair cable is again divided into unshielded twisted pair cable and shielded twisted pair cable. Okay, second is your coaxial cable and उसके बाद में axial cable, and the third one is fiber optic. ओके, तो जो हम लोग ने अभी देखा, फिर यहाँ से आपका डेटा पहुंचा रिसीवर के एंड पे, और रिसीवर के एंड पे पहुंचने के बाद में अगेन रिसीवर के पास में भी वही कार्यक्रम है जो हमारे पास सेंटर के पास था, 3 4 5 6 7। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये आपका ट्रांसमीटर है, जो आपका सेंडर है। आई कैन से सेंडर सिंपली, समझ में ज़रा अच्छे से, दिस इज माई सेंडर। ओके, एंड दिस इज माई रिसीवर। तो ये आपका सेंडर और ये आपका रिसीवर। तो व्हाट आई मीन टू से यू दैट के ये आपका जो 7th लेयर है, ओके, मतलब 7th लेयर हम लोग अगर टॉप से पकड़े तो आपका फर्स्ट लेयर हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड ऑल दैट। तो जो आपका जो बॉटम वाला लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल लेयर, तो यूर ट्रांसमिशन मीडिया आर फिजिकली लोकेटेड बिलो द सॉरी योर ट्रांसमिशन मीडिया आर लोकेटेड बिलो द फिजिकल लेयर, दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेयर जीरो। क्या बोलते हैं इसको, लेयर जीरो भी बोलते हैं। ओके, बिकॉज स्टार्ट फ्रॉम लेयर 1, तो 1 2 3 4 एंड ऑल दैट आपका 7 तक है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेयर जीरो। ओके, नाउ अभी आप सोचोगे कि खाली एक केबल कैसा हो सकता है आपका सेंटर से। थोड़ा मैं न्यू शीट लेता हूँ, न्यू शीट कैसे लेते हैं, अच्छा क्या बात है। अब हुआ। ओके, सो ये आपका कंप्यूटर, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में मतलब थोड़ा डिटेल में बता इसके ले रहा हूँ कि दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो भाई साहब ये आपके हो गए सेंडर साहब, ठीक है, और ये आपके हो गए रिसीवर साहब। थोड़ा सा डिस्टेंस से बता रहा हूँ मैं। अब ये आपका पूरा नेटवर्क है बीच में, ये आपका पूरा बीच में नेटवर्क है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका बहुत सारे नेटवर्क है, मतलब आपका ये आपका पूरा नेटवर्क देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, और यहाँ कहीं पर आपका जो है ना वाशी भी है, देखो ये आपका वाशी की का आपका ब्रिज है। ठीक है, मतलब ये पानी जा रहा है बेसिकली। या आप सेंडर हो, मतलब आप बैठे हो पनवेल में, ठीक है, या आप हो पनवेल में, एंड यू एंड द रिसीवर इज लोकेटेड इन CST। ओके, so you must be connected to some router, okay, and that router must be connected to another router, okay, that router connected to another router, connected 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 connected, यही तो आपका www है। ठीक है, और फिर ये सारे के सारे कनेक्टेड है आपस में। ओके,
यहाँ से एक वायर कनेक्ट, यहाँ से भी कनेक्ट है, यहाँ से भी कनेक्ट है, ओके। तो ऑल दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ओके। मे बी यहाँ पर कनेक्ट है, फिर यहाँ पर कनेक्टेड है, और ये इसको कनेक्टेड है समवेयर, ठीक है। तो ये आपका हो गया www, ठीक है। दिस इज योर सेंडर एंड दिस इज योर रिसीवर, ओके। सो यू आर सेंडिंग सम डेटा, सम पैकेट, दैट पैकेट मस्ट गो टू, अच्छा यहाँ से और भी ब्रांचेस होती है, यहाँ पे और भी ब्रांचेस है, यहाँ से और भी ब्रांचेस है, तो ये आपका सबका सब कुछ और भी ब्रांचेस जा रही है, बट यूर सेंडर योर पैकेट विल गो टू दैट पर्टिकुलर राउटर, देन दिस राउटर, अच्छा यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है, बट मालूम है आपको सस्ता सुंदर टिकाऊ रास्ता कौन सा है, that will be directed by your algorithm, routing algorithms. That routing algorithm will let you know that which route is the best one, okay। तो यहाँ से आपका डेटा जा रहा है। अच्छा ये सब क्या है आपका, मैं आपको ट्रांसमिशन मीडिया बताना चाह रहा हूँ। तो यह सब आपका बेसिकली क्या है, यहाँ से निकलने के बाद में ये जो आपका केबल है ये आपका ट्रांसमिशन मीडिया, ये जो केबल है ट्रांसमिशन मीडिया, ये केबल ट्रांसमिशन मीडिया, ये केबल ट्रांसमिशन मीडिया, ये केबल ट्रांसमिशन मीडिया, ये केबल ट्रांसमिशन मीडिया, ये भी ट्रांसमिशन, ये भी ट्रांसमिशन, ये भी ट्रांसमिशन, ओके। सो दिस इज द ट्रांसमिशन मीडिया, ओके। अब ये अभी अलग बात है कि ये वाला भी आपका गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया हो सकता है या फिर अनगाइडेड भी हो सकता है, ये वाला भी गाइडेड या अनगाइडेड हो सकता है, सो इट कैन बी एनीथिंग। बट ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, जो कि आपके डेटा को कैरी करे, आपके डेटा को कैरी करके लेकर जाए आगे वाले डेस्टिनेशन के पास में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये आपका वाशी वाला जो ब्रिज है, वाशी ब्रिज, ओके। अब ये वाशी ब्रिज में अब यहाँ से हो सकता है, यहाँ पे देखो टू पॉसिबिलिटीज है, ओके। एंड व्हाट आर दोस टू पॉसिबिलिटीज, इफ समवन हैज लर्न दैट पर्टिकुलर आर्टिकल, जो कि बहुत पहले आया था, आई थिंक, जो आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, आई डोंट नो, बट एक जो मतलब अंडर वाटर जो केबल डालने का जो काम होता है ना, जॉब होता है ना, तो ये भी एक तरह का जॉब है। तो ये अंडर वाटर जो केबल डालने का जो टास्क है, सो दैट इज द वन टाइप ऑफ जॉब जो कि होता है। अभी अपने वाशी में वो चीज़ है या नहीं है, आई डोंट नो, हो सकता है कि यहाँ पर एक उन्होंने एक बड़ा सा टावर लगाया हो, एंटीना लगाया हो, ठीक है, और यहाँ पर उसके एंड में एक बड़ा सा एंटीना लगाया हो, तो यहाँ से आपका वायरलेस जा रहा हो और ये वायरलेस को रिसीव कर रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि इन्होंने फिर वाशी की खाड़ी में से अंदर से ना केबल डाला हुआ, बड़े बड़े ओशियन में लोग केबल डालते हैं, आई डोंट नो, मेरे पास में एक आर्टिकल था, अगर मुझे मिला तो मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगा, मैंने बाकायदा लाइव उनका फ़ोटो देखा था। सो दे दे गोज ऑन बिग क्रूज, बड़े बड़े शिप पे जाते हैं, उनके पास में बहुत बड़े बड़े केबल्स होते हैं, जैसे यहाँ से एक साइड से उन लोगों ने डालना शुरू की, ठीक है। सो दे स्टार्ट डिगिंग एंड दे स्टार्ट सेंडिंग द केबल फ्रॉम वन साइड, उसको ट्रैक करते करते उन लोग जाते हैं, फिर आगे दूसरा केबल, फिर क्योंकि इतना बड़ा केबल तो रहेगा नहीं, तो एक केबल के बाद में दूसरा केबल, वो भी अच्छा खासा मोटा केबल, अच्छा। तो ऐसे ही हाँ, फिर मतलब दूसरा केबल कनेक्ट करेंगे, फिर तीसरा कनेक्ट करेंगे, फिर चौथा कनेक्ट करेंगे, और उसको भी दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, बिकॉज यू नो कि आपका जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपका जो वायर्ड वाला कनेक्शन है ये आपको अच्छी रिलायबल स्पीड देगा। एक बार कनेक्ट हो गया, एक बार सिचुएट कर दिए, सो दैट इज डन, ओके। अच्छा, आगे चल के अगर कुछ प्रॉब्लम अगर आता भी है, सो दैट यू कैन सॉर्ट आउट, आप उसको मतलब उसका अच्छा, वो भी एक जॉब, बड़ा हार्ड जॉब है। तो नो, द वर्कर हैज़ टू गो डाउन इनटू द ओशियन, और जाके फिर पूरी प्रोटेक्शन के साथ में जाके उनको सब चीज़ करना। अब आप लोग बोलेंगे सर ऐसा भी होता है, मेरा ऐसा भी होता है, मैंने बाकायदा खुद एक उसका वीडियो तो नहीं देखा, लेकिन ऑडियो मैंने इसका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था। सो आई नो, हमारे एक सर थे वागेश द्विवेदी करके, तो वो हम लोग को बता देते हैं, एक कंपनी थी, कंपनी XYZ। मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ। ये है आपका ओशियन, ठीक है। अब एक कंपनी थी, कंपनी XYZ, ओके। उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग को अब यहाँ से फॉर एग्जांपल ये है एक सिटी और ये दूसरा सिटी, ओके। तो दोनों को डिवाइड करके एक ओशियन बीच में था, ओशियन या फिर एक बड़ा सा जो है ना, जो बीच में को बोलेंगे, तो वहाँ से एक कनेक्शन ले आना ज़रूरी था, ओके। अगर कभी घूम के लेके जाएंगे सो दैट विल कॉस्ट टू मच, ओके। और ये बहुत आसान था इन द सेंस के बहुत कम डिस्टेंस था। तो व्हाट दे थॉट कि अगर कभी हम लोग यहाँ से अगर केबल लेकर जाएंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा,
if any other provider need that particular communication, then we can give on lease. Okay, थोड़ा हम लोग पैसा लेके उसको भी कनेक्शन दे सकते हैं, बिकॉज देखो इन लोग ने एक बार केबल डाल लिए ना, एक बार केबल उन लोग ने डाल ली। एक सेकंड पहले मैं कहाँ से कहाँ गया। ओके, पीपल्स आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, पहले मुझे एक बार बताओ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को? यस सर। ओके ओके, ये आपके ट्रांसमिशन मीडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आया हूँ, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स में जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसके लिए। सो XYZ कंपनी ने सोचा है कि चलो हम लोग अगर कभी केबल एक बार डालेंगे, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू कम्युनिकेट बिटवीन यहाँ का हमारा जो ऑफिस है, ऑफिस नंबर 1 एंड ऑफिस नंबर 2, ठीक है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सिंपल हो जाएगा। अदरवाइज हम लोग अगर ऐसा घूम के जाएंगे तो ये बहुत हम लोग को कॉस्टली भी पड़ेगा और बहुत लंबा फेरा मार के जाना पड़ेगा, काफ़ी बड़ी समझ लो नदी थी। सो व्हाट XYZ थॉट कि इन्होंने सोचा कि चलो यहाँ से केबल डालते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने फिर बेचारों ने केबल डालना शुरू किया, बहुत मेहनत से केबल डाला, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, कंपनी इज इन्वेस्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर वन। तो यहाँ से डाला उन्होंने केबल, डाला, बहुत बहुत मेहनत, बहुत महीनों लग जा रहे। अब उनके पास का इन्वेस्टमेंट खत्म हो रहा है, पैसे खत्म हो रहे हैं, कंपनी कंगाल होने को, फिर भी उन्होंने थोड़ा सा लेके बोले अब इतना तो आ गए, थोड़ा और कर लेते, करके 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 हम लोग यहाँ पहुँच गए, ठीक है। आपका केबल ये साइड पे आ गया है। ओके, नाउ वी आर रीच एट द अदर साइड। अब ये यहाँ पर हम लोग आ गए, यहाँ पर हम लोग का एक जो भी प्लांट था या फिर जो भी राउटर जिसको बोलेंगे या जो भी हमारा नेटवर्क था उसको कनेक्ट किया, टेस्टिंग किए एंड द टेस्टिंग वाज ओके। ओके कि भाई कहीं भी कोई इशू नहीं। अब टेस्टिंग हो गई तो व्हाट XYZ थॉट, भाई पैसे तो पूरा खत्म हो गया है, बिजनेस कर नहीं सकते। इन्होंने इन्होंने फिर नया नया प्लान क्या लाया कि भाई ठीक है ये अपनी लाइन है, ठीक है, अब कंपनी PQR को कनेक्शन चाहिए यहाँ से वहाँ तक, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज आर हैविंग देयर रिलेशन, देयर कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस सिटी 1 टू सिटी 2। ओके, तो PQR नीड्स कनेक्शन, तो PQR को इन लोग ने क्या लिया, भाई देख हम लोग तुझे कनेक्शन देंगे बट तुझे महीने का 50,000 देना पड़ेगा। PQR बोला ओके मुझे चलेगा, कोई इशू नहीं। तो PQR इज पेइंग 50K टू XYZ, हो गई आमदनी, हो गई XYZ की। एक और कंपनी थी ABC को बोला, ABC ने बोला कि मुझे भी दो, ठीक है, उसको भी 50K पे दिए, वो भी आमदनी चले, हो गई XYZ की। ऐसे बहुत सारी कंपनीज आती गई और उन सब को क्योंकि अच्छा केबल डाला था इन लोगों ने, अब वो मीडियम के थ्रू, वो मीडियम जो आपका यहाँ से यहाँ तक गया उसके थ्रू नाउ XYZ इज गिविंग द कनेक्शन और गिविंग द एक्सेस, एंड जो मीडियम का जो एक्सेस था वो सबको दिया उन्होंने, PQR ABC, तो जितनी कंपनी को लोग दे सकते थे सबको दिया, एंड नाउ दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग। ओके, तो इस तरीके से आपका जो XYZ कंपनी क्या बन गई, एकदम रिच बन गई। ओके, तो ऐसा एक स्टोरी हमको सुनाए थे, और वो कोई ऐसी फेक स्टोरी भी नहीं थी, एक रियल स्टोरी थी, हमारे एक सर बताते थे। तो इस तरीके से आपका ओशियन के अंदर केबलिंग डालने का काम शुरू हुआ। पहले तो हम लोग ने ये इंटेंशन से नहीं डाला था कि हम लोग वी विल बी अर्निंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर केबल, दैट विल बी इन्वेस्टिंग इनटू द ओशियन, और बाद में फिर सब लोग से कमाएंगे, ऐसा 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 कोई इंटेंशन नहीं था उनका। तो इंटेंशन ये था कि भाई हम लोग केबल डाल लेंगे और उसको नीचे सिचुएट कर देंगे, और फिर हम लोग अपना ऑफिस 1 एंड ऑफिस 2 कैन कम्युनिकेट। ओके, बट व्हाट हैपन लेटर, okay, so initially the work was started with having intention with the for the communication between the two offices, but later on what happened, they thought कि भाई इससे तो हम लोग अच्छा खासा कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। उन्होंने अपना काम छोड़ा, उनका तो कम्युनिकेशन हो गया था, उनका जो भी काम था वो तो चलने लगा, बट दे स्टार्टेड दिस द न्यू बिजनेस दे हैव स्टार्टेड एंड दे वाज अर्निंग लाइक एनीथिंग। तो इस तरीके से आपका जो अंडर द सी केबलिंग का जो काम होता है वो होता है। इसके अंदर केबल डालने के बाद में प्रॉपर्ली उसको सिचुएट करना,
बिकॉज हो सकता है कि कोई सी एनिमल उसको मतलब कि डिस्टर्ब करे, या फिर जो एंकर्स वगैरह होते हैं, एंकर्स होते हैं जो बड़ी बड़ी शिप के क्रूजेस के जो एंकर्स होते हैं, उन्होंने एंकर डाला और डाल डाल के फिर वो अचानक आपके केबल में आ गया, ठीक है। सो बराबर उसको इस तरीके से माउंट करना होता है, सिचुएट करना होता है। उसका मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा था, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें डिस्कस किए थे, उसमें लिखा था टॉप 10 डेंजरस वर्क, डेंजरस जॉब, तो उसके अंदर एक सबसे पहले उसका स्टार्टिंग टॉप टॉप 5 में ये भी था। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के लिए। कमिंग बैक टू द ट्रांसमिशन मीडिया, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया में, कम से कम ये डायग्राम से तो आप लोग समझ ही सकते हैं। ओके, so basically a transmission media are actually located below the physical layer, all the 7 layers, and after that particular physical layer, that is at layer 0, we can say this is the transmission media. And this particular transmission media we can say directly controlled by the physical layer because it is in direct contact. Okay, the only layer which is in direct contact with this particular transmission media is only the physical layer. आपका फिजिकल लेयर ही ऐसा एक लेयर, मात्र लेयर है जो कि आपके ट्रांसमिशन मीडिया से डायरेक्टली कांटेक्ट में है। we could say that the transmission media belong to the layer 0, and your transmission medium can be broadly defined as anything that can carry information from source to a destination. Your transmission media is what they are doing. They are carrying some sort of information, or we can say some data, some signal from the source to the destination. Okay, then for example the transmission medium of for two people having the dinner conversation in the air, like two people are sitting in front of each other, and they are doing the dinner and they are communicating. Okay, so what is the transmission media for them? Anyone? It is already written. If two people are communicating by sitting in front of each other on a table, okay, so what will be the transmission media for these two people? Anyone? मैसेज मत करो, डायरेक्ट बोलो। अरे बोलो भाई। What will be the transmission media or medium for two people having dinner? The conversation is the air only, na? This is the air from which they are communicating. Whatever I'm telling you, so that is, मैं इसके थ्रू बोल रहा हूँ, ठीक है। So whatever I'm communicating, that is going into the mic, okay, and the mic के थ्रू यहाँ से जाके कंप्यूटर में प्रोसेस होके that audio is getting converted into the signal, and that signal you people are receiving that signal, okay, and you are receiving in the form of the speak, आपको स्पीकर से वो चीजें आपको सुनने में आ रही है, okay। सो ये एयर का कम्युनिकेशन, बिकॉज दिस वायरलेस कम्युनिकेशन, ओके। तो अगर वही चीज़ अगर कोई हम लोग वायर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू कर रहे हैं, होता है ना, हम लोगों ने बचपन में शायद किया होगा, कोकोनट का जो शेल होता है उसको हाफ करके जो आधा शेल होता है वहाँ पे रस्सी बांध के दूसरे एंड पे रख के यहाँ से बोलेंगे वहाँ सुनेंगे। अब वो सुनने आता या नहीं आता, आई डोंट नो अबाउट दैट, तो कभी तो मुझे सुने आया नहीं, बस बाहर की आवाज़ आती थी, बट ऐसा लोग कहते हैं कि इससे कम्युनिकेशन होता है। सो जो सपाट तो ऐसे कम्युनिकेशन हुआ, तो वहाँ पर हमारा वायर एक था, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन हो सकते हैं, कन्वर्सेशन हो सकता है, ओके। सो लाइक छोटा सा एग्जांपल था, the use of long distance communication using electric signal started by Morse, okay। आपने मॉर्स का नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में मॉर्स को बहुत इज्जत देते हैं बिकॉज वो उनके काफ़ी सारी चीज़ों के मतलब इन्वेंटर हैं 19th सेंचुरी में। वायरलेस कम्युनिकेशन स्टार्टेड इन 1895, सोचो कि कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी है, ओके। तो 1895 बोले तो ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी स्टार्ट होने वाली थी, तब ये आपका वायरलेस कम्युनिकेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। सर द सिंपल ट्रांसमिशन मीडिया का जो एक थोड़ा डायग्राम हो सकता है वो ये हो सकता है, like at the center side we have a physical layer, and at the receiver side again we are having physical layer, because दोनों के बॉटम पे तो फिजिकल लेयर ही है, एंड द फिजिकल लेयर इज द ओनली मात्र ऐसी लेयर है विच इज डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द ट्रांसमिशन मीडियम, ओके। सो एज यू कैन सी दिस इज द डायग्राम। Coming to this broad categorization, or we can say classification, or we can say the diagram, categorization diagram of the transmission media. Your transmission media, guided, unguided. Guided is also called as wired transmission media, unguided is also called as wireless transmission media. Wired के अंदर twisted pair, coaxial, fiber optic. Unguided के अंदर radio waves, microwaves, infrared and other communication comes into it, okay। अलग अलग चीजें आती हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है हमारा गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया की तरफ, ओके।
Coming to the guided transmission media, we'll just cover that particular point. Guided transmission media, which are those that provide a conduct, or we can say from one device to another, include twisted pair, coaxial, and fiber optic. Like, we are having, our signal is getting guided by some of the conductor, okay, some material, okay. हमारा जो क्या बोलेंगे इसको, हमारा जो क्या बोलेंगे इसको, जो हमारी आवाज है या फिर हमारा जो सिग्नल है, दैट इज बीइंग गाइडेड बाय द मीडिया, ओके। लाइक देखो, अभी यहाँ पर मैं यहाँ इतनी दूर बैठा हूँ, मैं लैपटॉप इतना दूर है, so whatever I'm communicating with you people is I'm communicating with the help of this particular earphone, okay, which I've connected, and from this particular mic I'm communicating with you people, ठीक है। अच्छा, अगर कभी मैं ये ईयरफोन निकाल लो, डायरेक्ट में बोलूँ, तो माय वॉइस विल बी कैचअप बाय माय माइक्रोफोन, जो कि मेरे लैपटॉप में इनबिल्ड है, ठीक है, तो वो उसको कैचअप करेगा। सो ये आपका क्या हो गया, वाइड ट्रांसमिशन मीडिया हो गया। माय वॉइस इज गेटिंग ट्रैवल्ड बाय दिस पर्टिकुलर, अच्छा मेरी वॉइस इसके अंदर गई, यहाँ से जाने के बाद में ये जो जैसा जैसा वायर जाएगा वैसी वैसी मेरी वॉइस जाएगी अंदर से, ठीक है, मेरी वॉइस जा रही है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और यहाँ से फिर कंप्यूटर को मिलेगी। बट अगर मैं ये यूज नहीं करूँ और मैं ऐसे ही बोलूँ, तो माय वॉइस ये आपका क्या हो जाएगा, वायरलेस हो जाएगा, ठीक है। सो आई विल बी टॉक, आई नो आई विल बी कम्युनिकेटिंग विद यू पीपल बाय सेइंग समथिंग इन द एयर, ओके। फिर वो एयर में घूम घूम के फिर यहाँ मेरा माइक उसको कैच करेगा, और कैच करने के बाद में उसको प्रोसेस करेगा। तो ये हो गया गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। और जो मैं इधर से बोलूंगा वो हो जाएगा आपका अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। इन द अनगाइडेड ट्रांस इन अनगाइडेड ट्रांस सॉरी इन गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया वी आर our signal, our data, our information in the form of signal is getting directed, or we can say is getting guided by the cable, is getting guided by the cable, ठीक है। और जहाँ पर हमारी वायरलेस की बात होती है, वहाँ पर कोई भी हमारा मतलब गाइड करने के लिए कोई नहीं होता, वहाँ पर हमको कम्युनिकेट एयर में करना पड़ता है। सो वी टॉक एंड वी सेंड द सिग्नल इन एयर, ओके। आर ट्रांसमिशन, our transmitter send the signal into the air, and then the receiver will catch up the signal from the air। तो सब एयर एयर में खेलते हैं, लेकिन गाइडेड के अंदर वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ केबल, ओके। सो दोस केबल्स आर नथिंग बट योर ट्विस्टेड पेयर केबल, coaxial cable, and fiber optic cable, okay। Coming to the twisted pair and coaxial cable, it uses the metallic, or we can say the copper conductors that accept and transport signal in the form of electric current, okay। सो ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल के अंदर आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में डेटा ट्रैवल करता है। बट इन द फाइबर ऑप्टिक केबल द डेटा द सिग्नल्स आर द सिग्नल एक्सेप्ट एंड ट्रांसपोर्ट द सिग्नल, मतलब द केबल एक्सेप्ट एंड ट्रांसपोर्ट द सिग्नल, मतलब ट्रांसमिशन रिसीवर जो होगा वो इट विल बी डन इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ओके। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल में, but in the case of optical fiber cable या fiber optic cable which is very very fast, and why it is fast, because यहाँ पर हमारा जो डेटा जो ट्रैवल करता है वो लाइट के फॉर्म में डेटा ट्रैवल करता है, ठीक है। सो दीज आर दी टू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन दी ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल, एंड द सेकंड वन आपका फाइबर ऑप्टिक केबल, ओके। I hope you people are understanding, because it is not having that much complexities. बस simple है। Still, if you have any doubt, then please let me know. Time is over, but still, anyone having any doubt, we'll be continuing this. मत ना बेटा, मत, छोड़। Okay, so we'll stop over here, okay, and I'll stop the recording. And sorry